All right. So next question, question number 29th. 1 mole of an ideal gas passes through a process where pressure and volume obey relation which is given by P equal to P0, 1 minus half V0 by V square, where P0, V0 are constants. Calculate the change in the temperature of the gas if its volume changes from V0 to V0. तो आपके पास एक गैस है, remember 1 mole of ideal gas. So it is passing through a process in which the pressure and volume relation is given by P equal to P0, 1 minus half V0 by V square. Okay. They are asking you change in temperature if volume changes from V0 to V0. सबसे पहले you should remember PV is equal to nRT. तो P equal to nRT by V. तो ये जो P है, put here nRT by V equal to P0 1 minus half V0 by V का square. Okay, right? Then n is 1 क्योंकि number of mole is 1. So that is why I am not writing this here. Okay, so temperature T will be equal to, you will get T equal to P0, ये यहाँ जाएगा, right? So this is Vp0 upon R, 1 minus half V0 by V का square, correct? Then, so this is the equation for temperature. अब इनिशियल टेम्परेचर कैसे फाइंड करोगे? जब इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करना है तो इनिशियल वॉल्यूम मतलब कितना, V0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. जहां जहां पे आपको V दिखता है वहां पे V0 सब्स्टिट्यूट करो. तो यू विल पुट V0 P0 by R, 1 माइनस हाफ, ये था V0 अपॉन V, यहाँ पे भी V0 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल मतलब 1. व्हाट इज 1 माइनस हाफ? हाफ. तो ये आ जाएगा आपके पास V0 P0 और ये R और यहाँ पे 2. So this is initial temperature. Okay, then similarly you can find out final temperature. Final temperature find करने के लिए you have to put final volume which is 2V0, P0 by R, 1 minus half V0 by 2V0 का square, cancel and cancel. So this is 2V0 P0 by R, ये है 1 minus half, this is 1 by 4 into 2, 1 by 8. तो ये टोटल आ जाएगा आपका 1 by 8. 1 minus 1 by 8 is 7 by 8. So this is 2V0 P0 by R and 7 by 8. 1 and 4 का. So final temperature is 7 P0 V0 by 4 R. आपको क्या पूछा है? चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर आपके पास आया 7 P0 V0 by 4R minus you have over here initial P0 V0 by 2R. तो क्या क्या कॉमन निकालते हैं? निकाल लो. P0 V0 by 2R can be taken out कॉमन. यहाँ पे बचेगा 7 by 2 क्योंकि मैंने by 2 भी कॉमन निकाला है, minus 1. 7 by 2 minus 1, 5 by 2. 5 by 2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 by 4. 5 by 4 P0 V0 by R. This is change in temperature है क्या? 5 by 4 P0 V0 by R. Next question. When heat Q is supplied to a diatomic gas of rigid molecule, important है, diatomic gas of rigid molecule मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5. 3 ट्रांसलेशन से और 2 रोटेशन से.
at constant volume its temperature increases by delta T. The heat required to produce the same change in temperature at constant pressure. मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा टी चेंज करने के लिए हीट सप्लाइड इज क्यू. आपको पूछा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे सेम चेंज के लिए कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा. तो यू नो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज एन सीवी डेल्टा टी. ओके राइट. तो यू नो व्हाट इज सीवी, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, 5r/2 डेल्टा टी. डेल्टा टी को मैं dt बोल रहा हूँ, डजंट मैटर. और इसी को बोला है क्यू. राइट. मैं यहाँ पे चाहता तो ऑफ कोर्स इफ आई वांट आई डोंट राइट बी देयर, हो गया. तो q इज इक्वल टू n 5r/2 dt. ये है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ दे आर आस्किंग यू कि सेम चेंज प्रोड्यूस करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे QP एन CP डेल्टा T. सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे एन CP डेल्टा T और देयर एन CP डेल्टा T. और इसलिए V लिखा था फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है, इसलिए यहाँ पे CV है. ओके. व्हाट इज CP फॉर डायटोमिक गैस? 7r/2. What I will do is, मुझे in terms of क्या चाहिए? Q. I want to know what is QP in terms of Q. तो ऐसा करेंगे, what we will do is n 5r/2 dt लिख लेते हैं. और यहाँ पे 5 था क्या? नहीं, क्या था? 7. तो ये 5 और यहाँ पे ये 7 एडजस्ट कर लिया. तो दिस इज 7/5. दिस इज नथिंग बट ये क्या है? Q. तो 7Q/5 ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीवेज, 2 moles of helium gas are mixed with 3 moles of hydrogen molecules. Okay. What is the molar specific heat of mixture at constant volume? हमने अभी तक ये देखा था कि जब दो गैसेस को मिक्स करते हो तो व्हाट इज गामा फॉर मिक्सचर? n1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1. वो था gamma. यहाँ पे आपको क्या पूछा है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इजी है. स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू सिंपल n1 CV1 plus n2 CV2 upon n1 plus n2. सिंपल. व्हाट इज n1? 2. हीलियम गैस मतलब कौन सा गैस? मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक का CV कितना होता है? 3r/2 प्लस n2 कितना? 3 मोल्स. कौन सा गैस? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कौन सा होता है? रिजिड डायटोमिक. मतलब CV कितना? 5r/2 अपॉन 2 प्लस 3. अब ऐसा करो, न्यूमरेटर में जो जो दोनों टर्म में कॉमन है, 3r/2 कॉमन निकाल लो. 3r/2 कॉमन निकल गया. पहले टर्म में बचा 2, दूसरे में बचा 5. करेक्ट. अपॉन 2 प्लस 3 5. तो आ जाएगा आपका 3r/2 इंटू 5 और ये 7. करेक्ट. राइट. दिस इज, एक काम करते हैं, वेट, हमको आंसर आर में दिया है क्या? नहीं, मतलब आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? 8.3. बट डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वंस कि आर की वैल्यू 8.3 की जगह पे पुट 25/3. 25/3 इज अगेन 8.3. इससे कैलकुलेशन थोड़े सिंपल हो जाएंगे. 1s and 5s. राइट. नाउ दिस इज इक्वल टू 15. मतलब ठीक है, कैंसल एंड कैंसल. सो दिस इज 35/2. व्हाट इज 35/2? 17.5. 17.5. 17.4 आंसर में है.
Next question. A diatomic gas with rigid molecules does 10 joule of work when expanded, not expended, expanded at constant pressure. So when the gas is expanded at constant pressure, it does 10 joule of work. What would be the heat energy absorbed by the gas in this process? तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा इस प्रोसेस में, ऐसा पूछा है आपको. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपांशन है, तो Q विल बी इक्वल टू N Cp dt. हीट एब्जॉर्ब विल बी N Cp dt. बिकॉज व्हाई Cp? बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर, और एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो पता है हम लोग को. देन कौन सा गैस है? रिजिड डायटोमिक. तो आपको पता है दिस इज 7R/2 ओके dt. तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसको 7/2 nr dt. राइट. प्रॉब्लम ये है कि दे हैव गिवन यू वर्क डन. तो हाउ टू ब्रिंग वर्क डन इनटू इक्वेशन? ऑफ कोर्स यू शुड नो. डू यू नो pv इक्वल टू nrt? यस. इफ आई टेक डेरिवेटिव, तो p as it is डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v as it is डेरिवेटिव ऑफ p इक्वल टू n और r का कांस्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ t. पहला as it is डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब p as it is डेरिवेटिव ऑफ p, pdv प्लस vdp इक्वल टू nr dt. लेकिन वेट अ मिनट, प्रेशर क्या बोला है? मतलब दिस टर्म इज जीरो, तो आपको मिल गया यहाँ पे pdv इक्वल टू nr dt. लेकिन pdv तो होता है वर्क डन, याद है क्या? pdv इज वर्क डन, राइट. तो nr dt इज pdv विच इज वर्क डन. Therefore, amount of heat supplied Q is 7/2. nr dt is nothing but work done. So 7/2. How much is the work done? 10 joule. 10 joule. मतलब ये 1s and 5s are. This is 35. 35 amount of joule amount of heat is supplied. Next question. Very good. I like graphical questions because of course you need to do some graphical questions also. The plot that depicts the behavior of mean free time for the molecules of ideal gas as a function of temperature qualitatively is. तो अगर आपको याद होगा कल के ही सेशन में, if I'm not wrong, हमने mean free time as mean free path upon average speed ऐसा हमने डिराइव किया था. और आपको याद होगा mean free path is 1/√2 pi n d square और v average was √8 r t by pi n. This equation, right? By the way, did we change gas? No. So diameter will be constant. Did we add more gas or take out some gas? No. So number density will be constant. Molecular weight will be constant. R is constant. 8 pi √2 is constant. So since everything over here is constant except for root t, तो 1/√t. या फिर एक आप ऐसा काम करो, ज्यादा इजी होगा. जब आपको पता ही है, आपको क्या पता है? You know. What do you know is this? ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है. This is a constant. Okay, ये आपको पता है. So if you know this, let's make question simple. So you will have tau equal to some constant k 1/√t. Okay. अब before we go to answer here, let me check how much you know about graphs. अगर ये आपके पास x axis है, ये y axis है, what is the equation of this line? If this is, let us say c, y equal to mx plus c. m is slope, positive slope. अगर ऐसा लाइन लेता तो मैं
माइनस एम एक्स प्लस सी आता। ओके, तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। हाउ अबाउट इफ दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, सी इज 0, मतलब y इंटरसेप्ट इज 0, करेक्ट। अब ये लाइन को मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, क्योंकि ये लाइन जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो वापस से वो ओरिजिन से ही पास होगा, करेक्ट। हमारे क्वेश्चन में अगर आप ग्राफ देखोगे, पहले तो इक्वेशन देख लो, टाउ इक्वल टू सम कांस्टेंट 1 बाय रूट टी। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे 1 बाय रूट टी प्लॉट करता हूं और वाई एक्सिस पे अगर मैं मीन फ्री टाइम टाउ प्लॉट करता हूं, तो आई शुड गेट सच ए स्ट्रेट लाइन। सिर्फ 1 बाय रूट टी को मैं एक्स बोलूंगा और y की जगह पे मैं टाउ लिखूंगा। इज दिस क्लियर? लुक, टाउ एंड t, not root t, not 1 by root t, straight line through origin, no. Look, tau and 1 upon root t, straight line through origin, yes. Look, tau and 1 by t, हमारा रिलेशन है 1 by root t, नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। तो यू हैव ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल टेल यू आंसर इज 19 by 13, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है। सिर्फ वहां पे बोला था कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे सिर्फ क्या है, आपको बोला है कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ n मोल्स ऑफ हीलियम एंड 2n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ओके, आपको पूछा है व्हाट इज Cp by Cv वैल्यू ऑफ द मिक्सचर, मतलब क्या पूछा है आपको? गामा मिक्सचर, राइट, गामा मिक्सचर, राइट। तो वेल, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसको, बट आई वांट यू टू सॉल्व दिस इन अ डिफरेंट मेथड नाउ। व्हाई अ डिफरेंट मेथड? कैसे? डेफिनेटली आई नो यू नो दिस फॉर्मूला, n1 gamma 1 gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2, ये सब पता है आपको, but that is not the idea behind repeating this question. The idea is to tell you a shortcut method, right? Consider a mixture of n1 moles of helium gas. Helium gas is monoatomic, and 2n moles of oxygen. Oxygen is diatomic. तो in general आपको जब गामा वैल्यू फाइंड करनी होती है, राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गामा? Cp by Cv। तो Cp by Cv ऑफ मिक्सचर आपको फाइंड करना है, ओके। तो कैन यू थिंक ऑफ सम अल्टरनेट मेथड? So you know this method already. You know gamma mixture is n1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 upon n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus 1। ये आपको पता है, इससे हमने पहले सॉल्व किया था, आंसर 19 by 13 आता है। Let us try method number 2. In method 2, as I told you, आपको पता ये होना चाहिए, you should know that Cv in terms of degree of freedom is Fr by 2 and Cp is F by 2 plus 1 R. Okay, plus 1 R. Okay, करके देख लो, नहीं तो करेक्शन समझ में आ जाएगा। मोनोएटॉमिक 3, तो 3R by 2 एंड उसका Cp 5R by 2, तो 3 by 2 plus 1 5 by 2 R, करेक्ट। तो फॉर्मूला इज करेक्ट। नाउ लेट अस ट्राई डूइंग दिस। हम एक काम करते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर फाइंड कर लेते हैं। ये हमने पहले भी यूज किया है, n1 f1 plus n2 f2 upon n1 plus n2।
N1 is N, बोला है क्या N मोल्स? यस, राइट. F1 पहला गैस कौन सा है? हीलियम. हीलियम के कितने? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 3 प्लस N2. N2 कितना है? 2N. और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिजिड डायटोमिक, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 5 5, ओके, अपॉन N प्लस 2N. तो दिस इज 3N प्लस 10N, मतलब कितना? 13N अपॉन नीचे 3N, NN कैंसल, तो 13/3. You have 13/3. Now let us find out what is CV of mixture. तो यह आएगा आपका F mixture R/2 and F mixture 13/3 है, तो यह आएगा आपके पास 13R और नीचे था 2 into 3 is 6. Correct? This is CV mix. Similarly, CP mix will be equal to, now F mix by 2 plus 1 into R, और ये कितना था? 13/3. 13/3 into 2 is 6 plus 1 into R. This is how much? 19/6 R. Right? So gamma for mixture will be CP mix by CV mix. मतलब दिस इज 19R/6 अपॉन 13R/6, कैंसल 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 कैंसल, 19/13. मतलब यस, दिस आल्सो वर्क्स. मेथड 2 है. मेथड 3 देखते हैं हम. मेथड नंबर 3, एज आई टोल्ड यू, मेथड 3 में आप क्या करोगे? आप पहले डायरेक्टली सीपी सीवी निकाल लो. यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया मेथड 1 में, तो दिस इज मेथड 1. मेथड 2 में आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाले मिक्सचर के. मेथड 3 में सीपी और सीवी डायरेक्ट निकाल लो. तो सीवी मिक्स विल बी डायरेक्टली N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2. N1 कितना? N. CV1 कौन सा गैस था? हीलियम. हीलियम का CV 3R/2. 3R/2. N2 कितना था? 2N. दूसरा गैस कौन सा था? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का CV 5 5 5R/2. ओके, तो अपॉन दिस इज N प्लस 2N, मतलब 3N. ओके, तो दिस इज नथिंग बट, ये है आपका ऊपर लुक 3NR और 10NR/2, मतलब ये टोटल आ जाएगा 13NR/3N. हाँ, 6N. ओके, तो NN कैंसल, तो 13R/6 CV mix. You had the same thing, right? तो सिमिलरली CP mix भी आपको मिल जाएगा. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं. It will be 19R/6. 19R/6. तो गामा मिक्सचर जब आप फाइंड करोगे, that will be CP mix by CV mix, and that will be equal to 19/13. Who says it is difficult? JEE question 2023 methods. Next question. To consider two ideal diatomic gases A and B at same temperature T. Molecules of gas A are rigid and have mass m. Molecules of gas B have additional vibrational mode. मतलब A के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और B के डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, A के 5 ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन और B के 7 ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल. ठीक है, और B का जो मास है वो m/4 है. रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स जोक. व्हाट इज CV ऑफ A? कौन सा गैस है? रिजिड डायटोमिक. रिजिड डायटोमिक 5. Wait a minute. CV for monatomic is 3R/2. CV for diatomic is 5R/2. CP नहीं, CV है ये. And CV for B मतलब non rigid diatomic is 7R/2.
So what will be CVA by CVB? It will be 5R by 2 upon 7R by 2. That is 5 by 7. Option number D. Khatam. So there is no relation of CV with mass. They just give you such information so that you spend time in finding a relation of CV and mass. So mass पे depend नहीं करता है. Next question. Two gases, argon, atomic weight, atomic radius 0.07 nanometer and atomic weight 40. Atomic क्यों बोला होगा? क्योंकि inert gas है, वो molecule बनाता ही नहीं है, इसलिए atomic weight. And xenon, atomic radius 0.1 nanometer and atomic weight. वापस से xenon is inert. Okay, 140 उसका atomic weight है. Have the same number density and are at the same temperature. The ratio of mean free times is close to. अभी अभी आपने mean free time tau का एक relation derive किया था 1 upon root 2 pi n d square under root of 8 RT by pi n. See, the thing is atomic radius. Atomic radius मतलब it has something to do with diameter and atomic weight मतलब m. बाकी आपको सेम नंबर डेंसिटी बोला है, मतलब n कांस्टेंट, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट और रूट 2 भी कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, r कांस्टेंट और टेम्परेचर भी सेम बोला है, तो ये भी कांस्टेंट, राइट. इसका मतलब अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर जाएगा, मतलब मीन फ्री टाइम will be proportional to root of molecular weight by d square, right? Then T argon by T xenon equal to molecular weight of मतलब atomic weight in this case of argon to that of xenon, and it will be diameter of xenon by diameter of argon का square. आपको पता होना चाहिए, भले ही आपको रेडियस दिया है, रेडियस का रेशो मतलब डायमीटर का रेशो, राइट. तो रेडियस का रेशो मतलब डायमीटर का रेशो. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रेडियस की इंफॉर्मेशन डालने वाला हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू डायमीटर इज रेडियस इनटू 2, वो सब ठीक है, वो आई विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट. हाउ मच इज दिस? 40. हाउ मच इज दिस? 140. वो दिया है. व्हाट इज द डायमीटर मतलब रेडियस कितना दिया है आपको? xenon का 0.1. 0.1 इज रेडियस, ये डायमीटर है. मैंने आपको बताया ये 2 इंटू करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम जस्ट राइटिंग दिस फॉर योर सेटिस्फैक्शन, दैट्स इट. ओके. एंड बाय द वे ये था नैनोमीटर में. अर्गन का कितना है? 0.07 नैनोमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैनोमीटर यूनिट्स कैंसल आउट होते हैं, इसके लिए हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया. इसका स्क्वायर और 2 और 2 भी कैंसल आउट होता है. ये है 2 और 7 अंडर रूट ऑफ 2/7. देन 0.1 और नीचे है 0.07. तो यू शुड नो दिस 0.1 अपॉन 0.07 10 पावर -1 7 इंटू 10 पावर -2 ऊपर जाके प्लस मतलब ये आता है 10/7. तो ये आता है 10/7 और इसका स्क्वायर होगा. नाउ अंडर रूट ऑफ 2/7. ओके. 10 स्क्वायर इज 100, 7 स्क्वायर इज 49, roughly 2. 100/50 approximately 2. Root 2 is 1.4. Root 7 मुझे बताओ व्हाट इज 25 स्क्वायर? 625. व्हाट इज 2.5 स्क्वायर? 6.25. यहाँ पे क्या है? 7 है. इसको रफली इसका रूट अगर लेता हूं तो वो 2.5 से ऊपर होगा, राइट. तो रफली 2.6 मान लेते अप्रोक्सीमेटली. रूट ऑफ 7 इज अप्रोक्सीमेटली 2.6. 1.4 into 2, करेक्ट. 2.8
by 2.6. 28 by 26, slightly greater than 1. 1 से थोड़ा सा ज्यादा. खत्म. Option number A. Okay, so that's the end of this chapter. So we'll stop here for today.